بعد حسین آئے ہیں عباس اس طرح، سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی کا وائس آف لداخ میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ 4 شعبان معظم جشن آمد پرنور حضرت ابوالفضل العباس کی ولادت کے موقع پر آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح ضلع کرگل میں بھی جشن ولادت حضرت ابوالفضل العباس بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی محفل کا انعقاد امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور انجمن جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل میں منعقد ہوا۔ ایک رپورٹ پہنچائیں گے آپ تک، آپ بنی رہے وائس آف لداخ کے ساتھ۔
Barcelona Barcelona. Yaman meydan meydan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu. اور شجاعت سے ظاہر کرنا رسول جو سنا روتامنی گومولا تھیکو یامی سان سنا گرت شونا گومولا یامی کھسن بچا کھڑے سنا روتامنی گومولا تھیکو یامی سان سنا Gretti jubna bumbula yangi kaçandın çarpore inne geçer çutta dekam جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامیہ اسکول میں شعبہ ادب کی طرف سے جو شعبان کا جو پاک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اس مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروگرام یہاں پہ رکھا گیا ہے 2 روزہ تو کیا کہنا چاہیں گے اس مناسبت سے اور آج کی اس عید کے موقع پر کیا پیغام رہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہم سے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے شعبہ ادب جو کہ ایک ذیلی شعبہ ہے اسلامیہ اسکول جمعیت العلماء کا تو ان کی سال میں کچھ اور بھی فنکشنز اور بھی یہ ہوتے ہیں لیکن یہ شعبان کی 3 عیدیں جن میں مسلسل طور پر 3 شعبان کو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور جو 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور 5ویں شعبان کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو اعیاد ہے عیدیں ہیں وہ ہم مسلسل طور پر اپنی نگرانی میں مناتے ہیں اور مناتے رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ 3 عیدیں جو ہے ہم نے تقریر کو چھوڑ کر صرف شعر اور ادب کے اس میں لایا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں پر اپنے لینگویج اس کا جو بلتی اور پرگی وغیرہ کا ہے یہ تقریباً ناپید ہوتے جا رہا ہے اس لیے اس کو محض آبیاری کرنے کے لیے اس کو پھر سے اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ہم نے گزشتہ 10 سالوں سے تقریباً ان عیدوں کو محض ادبا اور شعراء کے حوالے کر کے رکھا ہے اور آج کل خدا کے فضل سے اتنے اچھے اور معیاری شاعر ہمارے درمیان میں ہے جو کرد و بلتستان وغیرہ کے شاعروں کے ہم پلہ بن چکے ہیں جی تو اور ایک چیز میں جاننا چاہوں گا جی سر اس سے کیسے شعبہ ادب کی طرف سے پروگرام یہاں پہ رکھے جاتے ہیں تو کتنے شعراء حضرات جو ان 3 دنوں میں یہاں پہ حصہ لیتے ہیں اور کن کن بھاشاؤں میں خاص طور پہ لینگویجز میں یہاں پہ جی یہ کی جاتی ہے؟ ہمارے رجسٹریشن میں تقریباً 36 شعراء اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور تینوں عیدوں میں ہم نے کم سے کم 10 شعراء کو ٹائم دیا ہے جس میں پرگی زبان بلتی زبان شینا زبان اور آج آپ نے ایک کنگو زبان کا بھی شاعر کو آپ نے سنا ہے آج وہ پہلی بار ہمارے صف میں آ گیا ہے وہ بطالق کا ہے عارف لداخی جن کا نام ہے انہوں نے وہاں کی دردی زبان میں یعنی کنگو زبان میں اپنا کلام پیش کیا ہے تو مطلب ہمارا کم سے کم ان 3 دنوں میں 30 شعراء نے اس سے محفل منقبت میں حصہ لی ہے اور 30 کا 30 مختلف زبانوں میں صرف 1-2 نے اس میں اردو میں یہ کیا ہے مادہ گوئی کی ہے باقی نے بلتی شینا اور پرگی وغیرہ میں اس اپنا کلام سنایا ہے جی حضور فدائی لبیک رہبر علی خامنائی ہم سب پیامی تیرے فدائی لبیک رہبر علی خامنائی تیری قیادت پہ ناز ہم کو تو دے رہا ہے پرواز ہم کو تیری قیادت پہ ناز ہم کو تو دے رہا ہے پرواز ہم کو رب کی ادا ہے یہ رہنمائی لبیک رہبر علی خامنائی ہم سب پیامی تیرے فدائی لبیک رہبر علی خامنائی ہم سب پیامی تیرے فدائی یا اللہ خدا اس پلا میں فوق سے ننوب سے تخمہ پوچے فیانہ میو
خلق yo biase fanse nga medla khoja yas kureya chikilari jube go bedna yangi biozerena que fanse ya zulmat kirkiliana samsunga tidi yulko zulmat kirkiliana shang yokuni chongmana pure otko khomeini shang yokuni chongmana pure otko khomeini shang medyase dukpide misonla kongi si shangdo shang medyase dukpide misonla kongi si shangdo Mirjet Pagoshi Ehsan ko Khomeini Mirjet Pagoshi Sevsava Ehsan ko Khomeini Dare rehbari kya posta alamdar na tokhla Dare rehbari kya posta alamdar na tokhla Filen yok kure parcham ko Khomeini Dushman na filen yok kure parcham ko Khomeini Imam Jamaat Sheikh Hamid Sahab बुजुर्गों जवानों मेरे बकरे के वॉलंटियर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद तमाम मोमिनीन को इस दाइफाजिद की मुनासिबत से बहुत बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बकरिया के फील्ड डायरेक्टर होने के नाते कि इस 10 दिन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हमें भी शिरकत करवाने का मौका फराहम करने के लिए IQM जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये दाइफाजिद हम हर साल मनाते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो ईरान की उसकी बरसी उसके मौके पे। तो ये मनाने का मकसद ये है कि हमारे सोसाइटी में जो ये इनकलाब किस लिए ईरान में आया है, किन बुराइयों को खत्म करने के लिए ये इनकलाब लाया गया, खत्म करने के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया। तो वही बुराइयां हमारे सोसाइटी में ना फरकने पड़े। ये दायरा जमाने का मकसद यही है कि हम उन बुराइयों से दूर रहें और हमारी सोसाइटी तभी आगे बढ़ेगी, तभी तरक्की करेगी। जैसे बुराइयां बहुत सी बुराइयां ऐसे हमारी सोसाइटी में भी है, हर सोसाइटी में होती है, करप्शन हो गया। डायग्नोस्टिक सेंटर बाजार में दस्तयाब है जिनमें गरीबों को फ्री में सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किया जाता है और बाकी लोगों से नॉमिनल चार्ज पे, बाकी मार्केट के रेट से काफी कम चार्ज पे चला रहे हैं काफी सालों से। इसी तरह हम बहुत सारे कैंप्स करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी कैंप, सुपर स्पेशलिटी लोगों को मालूम है, बाहर से डॉक्टर बुला के कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर बाहर से हम ला के यहाँ पे ऑपरेशन करना होगा या पेशेंट को कंसल्टेशन करना होगा वो फराहम करते हैं। हॉस्पिटल्स में यहाँ से श्रीनगर या कहीं लेना होगा तो एम्बुलेंस हम फराहम करते हैं। इसी तरह हमारे हेपेटाइटिस बी जो ग्रैंड हमारा एक प्रोग्राम है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, आप सब लोगों को खबर है पूरे कंट्री को हमने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीनेशन दिया। तो अभी जो नई प्रोग्राम हम चला रही है, तो हमारी जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स और जो चल रहे हैं आप लोगों को खबर भी है, लोग नए प्रोग्राम हम चला रहे हैं। एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे चला रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसमें स्कूलों में जाके हम अवेयरनेस देते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और वो मेंस्ट्रुअल डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये खुशी की बात ये है कि वो सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हमने लेह में भी लॉन्च किया। तो लेह में ये प्रोग्राम अभी हमारा चल रहा है। इसी तरह आगे हमारा प्लान है, जो हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करके चला रहे हैं, ये अलमदार एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलमदार हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन लेह में, उनके कोलैबोरेशन में हम लेह में भी ये डायग्नोस्टिक सेंटर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आज विलादत बासरत हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के मौके पर आज बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में भी यहाँ पे हिस्सा लिया। तो क्या कुछ आपकी तरफ से आवाम को
आज के इस मौके पर पैगाम रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शुक्रगुजार है कि इस प्रोग्राम में हमें शिरकत करने का मौका मिला। एज एन ऑर्गेनाइजेशन बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की तरफ से हमने आज एक प्रोग्राम मुनक़द करने की कोशिश किया जिसमें लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हमारा बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर वॉलंटरीली 2007 से इस हेल्थ के शोबे में वॉलंटरीली हम काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि एक हेल्दी सोसाइटी हमारे करगिल को बीमारियों से निजात दिला के एक अच्छी सोसाइटी, ना कि फ़िज़िकल हेल्थ बाकी मेंटल हेल्थ पे भी आजकल हमारा फोकस है रहा छना दे कोशिश दिया इन मिनकिंग अच्छी दी प्रोग्राम में दिया गैदरिंग फ़ायदा लेने। एक तो इस मुक़द्दस दिन पे इस मुक़द्दस दिन को का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की जो यहाँ पे गैदरिंग उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के सारे कंट्रीब्यूशन से ही बकरिया चल रहा है और इसलिए लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि हम जो वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं और कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। यही जानकारी देने का हमारा कोशिश था कि हम पब्लिक के लिए क्या हम उनको हेल्थ के शोबे में क्या सर्विसेज दे रहे हैं। साथ ही साथ ये एक डॉक्टर होने के नाते मैंने ये कोशिश किया कि कुछ ऐसे छोटे मोटे टिट बिट्स होते हैं हेल्थ में कि जिसमें हम अपने सेहत को कैसे बचाएं, अगर बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास कब पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए और कैसे इलाज लेना है और कैसे हमारे बकरे की सर्विसेज का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। यही हमारी कोशिश थी लोगों तक पहुंचाने की। कसम लोगों से खिताब करते हुए आपने खासकर जवानों को लेकर ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इशूज़ बताया, तो क्या कुछ? हाँ, जवानों से ख़ासकर मेरी यही क्योंकि जवान एक ऐसे कौम का तबका है जो आगे जाके हमारी सोसाइटी उन्हीं के कंधों पे जाने वाला है। क्योंकि अगर हमारा ये जो जवान तबका अगर हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें, ख़ासकर जो आजकल का एक ड्रग मेनेस हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है, मेरी तमाम जो छोटे बच्चे टीनेजर्स बच्चे जवानान तमाम पब्लिक से गुजारिश ये रहेगी कि इस बीमारी से जितना हो सके इस मुहलिक चीज़ से मुब्तला अपने आप को बचाएं, अपनी सोसाइटी के लोगों को बचाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बचाने की कोशिश करें, इसके बारे में जानकारी दें, इसके नुकसानात समझाएं। साथ ही साथ अथॉरिटीज़ से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करें। अगर हमारी तरफ से एज ए डॉक्टर या एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी तरफ से कोई भी ताउन की ज़रूरत हो, इस काम में मदद चाहिए होगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जितना जल्दी हो सके भी शुरुआत में ही इसको हम जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी जवानों से मेरी ये रहेगी कि एक तो अपनी पढ़ाई पे, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे, हर चीज़ पे ध्यान देना ही है। साथ ही साथ अपने गांव में, क्योंकि जवानों को स्मार्टफोन का एक्सेस है, उनको नॉलेज है। गांव में जब भी जाओगे आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज होगा कि मती छिमी सुनसून ला जिनको बेचारों को नॉलेज नहीं मिलता है गाँव में लपसनदों लजा जाना जानकारी तांचा गाचो गाते सेहत पर गला जाओ तो या डॉक्टर का दांत दिंग जरखानी इस पर जवानों सोच हो रहे ना का तो खेरा ला मजाक पा गाँव खेरा गाती मीचा गजरचा डॉक्टर के अच्छा सोसलतार गोशिन दी प्रॉब्लम पोछाना डॉक्टर के सोसलतार गोशिन टाइम का इलाज बार गोशिन जरे छना एक मतलब सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर दाने लाज बचा कैसा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।